So today we are going to start with your topic PN junction, right? तो आपको जस्ट ब्रीफिंग देंगे पहले पीएन जंक्शन के बारे में कि क्या होता है पीएन जंक्शन, कैसे बनता है, राइट? सो उसकी स्टार्टिंग करते हैं. So first word is energy bands. So you all are familiar with this term energy bands, है ना? Energy band का मतलब क्या है कि what is the range of energy which is supported by electrons in the same orbit. That is defined as the energy band. So in your physics you have studied that कि there are two types of bands. One is valence band, one is conduction band. अब valence band का मतलब क्या होता है कि the energy band which is there for the valence electrons. जो electrons जहाँ जो valence electrons का मतलब क्या है? The electrons which are freely available, है ना? valence electrons का मतलब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, है ना? जैसे मैंने कहा कि आपका मान लो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो आपका जो ये एनर्जी बैंड है, क्या बोल रहे थे? एनर्जी बैंड व्हिच हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द वैलेंस बैंड, एंड फॉर द कंडक्शन बैंड द एनर्जी बैंड ऑफ द व्हिच हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन बैंड. तो जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इट इज separated by some amount of energy gap. For the case of conductors, we know that that gap is almost zero. As you can see in this figure, the first figure, where we are saying that the energy gap, that is the Eg, bit is zero. That is the energy gap between the valence band Vb and the conduction band Cb. So for the conductor, its Eg is approximately equal to zero. Now, if I talk about the insulator part, in insulators, we say that there is a huge energy gap between the valence and the conduction band. So that is of the order of 5 electron volts. What is 1 electron volt? You all might be familiar with this. क्या होता है 1 electron volt? 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Right. So this is the amount of value of 1 electron volt. तो आप कह रहे हो जो हमारे पास इंसुलेटर है उसमें क्या है? We are having a huge energy gap. So it means अब ये energy gap का मतलब क्या है कि if I want to bring 1 electron from a valence band into the conduction band, how much energy I require? Right. So for the case of insulator, its value is too high. Now, if I move towards the semiconductor part, under semiconductor we can see the energy gap is somewhat lesser than that of the insulator, but more than that of the conductor. So semiconductor lies between the insulator and conductor, and its energy gap is of the order of 1 to 2 electron volts. अभी 1 to 2 लिखा है हमने फिक्स नहीं लिखा, है ना? तो 1 to 2 electron volts का मतलब क्या है? Depending upon कि which type of semiconductor you have chosen, accordingly उसका energy gap. So just come to the left side of this figure. Here we have written that energy gap for the case of germanium. That is, if we take a single crystal, right? So for that, its value is 0.67 electron volts. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर germanium का हमारे पास है तो उस केस में the amount of energy which is required to bring 1 electron from the valence band to conduction band is lesser in comparison to, let's say, silicon or gallium arsenide. So these are just the examples given to you that what is the amount of energy gap offered by the different semiconductors, whether it is a elemental or single crystal or it is a compound semiconductor. So compound का मतलब क्या है? Mixture of the more than 1 or 2. ठीक है? अब जो आपके पहले सिलिकॉन है, सिलिकॉन केस में कितना बताया? 1.12 electrons. And for gallium arsenide it is 1.43 electron volts. So जो आपका सेमीकंडक्टर है, अभी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर बनाना कैसे है हमने, है ना? तो फॉर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या है? कंडक्टर्स से थोड़ा कम कंडक्टिविटी है इसकी, लेकिन इंसुलेटर से काफी हाई, राइट? तो वो कैसे फॉर्म करना है उसके बारे में बात करते हैं. इतना क्लियर है स्लाइड के अंदर? कोई डाउट स्लाइड में बताओ मुझे किसी को. इट्स वेरी सिंपल. सर वो सर अगर कोई सेमीकंडक्टर, अगर कोई मेटेलिक सेमीकंडक्टर होगा तो जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वहां पे तो पार्शियल फील्ड अगर होगा तभी तो होगा ना. अभी मेटल और सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे, कंबाइन नहीं कर रहे, अभी हम एक की बात कर रहे हैं. अगर ये मेटल होगा तो ये हमारा कंडक्टर वाला पार्ट में आ गया, अगर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर वाला पार्ट में आ गया. जब हम मेटल का सेमीकंडक्टर कनेक्ट बनाएंगे आपस में, जब हम पढ़ेंगे मॉस वाला पार्ट, उसमें ये आएगा जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो. सर ये नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे
क्या मिल जाएगा? नोट्स के पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे इसके, जो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, तभी मैंने आपका जीआर का नंबर लिया है अभी। लेक्चर के इमीडिएटली बाद आई विल जस्ट शेयर वन गूगल ड्राइव लिंक, जिसके ऊपर आपके अभी जो लेक्चर ले रहे लाइव उसकी रिकॉर्डिंग होगी, प्लस ये पीपीटी सारे होगी। सो नो नीड टू नोट डाउन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एनर्जी गैप है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टर्स का है, दिस इज फॉर द इंसुलेटर एंड दिस इज फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस थिंग इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल स्लाइड। चलें आगे। यस सर। यस सर। सर ये आप अपलोड करोगे? मतलब लेक्चर मेरा नेटवर्क ना डाउन हो गया था एकदम। बिल्कुल बच्चे, सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड होगा। ई कंटेंट भी पड़ा है इसके अलावा आपके पास, पर ये वाला भी अपलोड मैं करूंगा, उसका लिंक आपको जीआर से मिल जाएगा, मैं मेल करूंगा उसको। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेमीकंडक्टर। अभी जो आपका सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स, वन इज एक्सट्रिंसिक, वन इज इंट्रिंसिक। राइट, अब दोनों में फर्क क्या होता है? जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सो जब मैंने वर्ड प्योर बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो इंटेंशनली ऐड सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनसाइड अ प्योर सेमीकंडक्टर टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम इम्प्योर ऐड करेंगे तो इम्प्योर में क्या ऐड करें? तो देयर आर टू टाइप्स फॉर दैट। इफ आई एम डोपिंग इट विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, सब पी टाइप होगा, ट्राइवेलेंट तो पी टाइप होगा। बिल्कुल ठीक बात। दूसरे में आई विल टेक अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एन टाइप होगा। तो एन टाइप होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकॉन का ले लिया या जर्मेनियम का ले लिया, उसके अंदर मैंने कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो मैं इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं डोपेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, कि कितनी इम्प्योरिटी ऐड करनी है। ये तो है नहीं कि एक प्योर लिया उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी डाल दी, नहीं, विल डू अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इम्प्योरिटी। वो कितनी होती है? दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1:10⁻⁶ और 1:10⁻8। क्या मतलब है कि अगर 10⁻6 एटम्स है मेरे प्योर सेमीकंडक्टर के, तो उसके अंदर सिर्फ एक एटम डाला मैंने प्योर का, इम्प्योर का। और अगर 10⁸ हमारे पास एटम्स है, सपोज करो प्योर सेमीकंडक्टर के, तो उसके अंदर 1 एटम डाला मैंने इम्प्योर। इट में भी ट्राइवेलेंट, इट में भी पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट डालूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये पी टाइप। पेंटावेलेंट डालेंगे तो बन जाएगा एन टाइप। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए देखो, यहाँ पर आपके लिए 2D स्ट्रक्चर बना रखा है, एन टाइप का बना रखा है, एक हमने पी टाइप का बना रखा है। राइट, उससे पहले ऊपर ये लाइंस को रीड कर लो कि व्हेन वी ऐड सम इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर वी कॉल इट एज एक्सट्रिंसिक, जो हमने पढ़ा है, एंड विद चार्ज इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं सेमीकंडक्टर को, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती जो प्योर की होती है ना। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। और जो हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, उसको हम बोलते हैं डोपेंट। सो डोपेंट इज द इम्प्योरिटी जो हम ऐड कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। राइट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मींस वी आर फॉर्मिंग अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मींस वी आर फॉर्मिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ लेट्स कम टू दिस 2D स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ध्यान से, कि हमने एक सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर लिया जो प्योर सिलिकॉन था, उसमें हमने एक एटम डाला, किसका? फास्फोरस। अब जो फास्फोरस है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बताइए? 5। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर जब ये फास्फोरस आया बीच में, तो सिलिकॉन के पास ये यहाँ पर था, एक यहाँ से आएगा यहाँ, तो इसने ऑक्टेट तो पूरा कर लिया आपने यहाँ पर, है ना। तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, इसको लिखा हुआ देखो यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस जब मैं फास्फोरस डाल रहा हूँ इम्प्योरिटी एज अ इम्प्योरिटी इन माय प्योर सेमीकंडक्टर, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, वो कहीं यूज नहीं हो रहा मेरा, ऐसा है ना। तो इट मींस जो चीज मेरे यूज की नहीं, आई कैन डोनेट टू समबडी। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट उसमें जाएगा, तो क्या होगा, मान लो ये स्ट्राइक किया यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पर ही खुद आ गया। तो इट मींस देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, रिजल्टिंग इन सम फ्लो ऑफ कैरियर्स और फ्लो ऑफ करंट। तो
अब यहाँ पर हम बात क्या बोलेंगे कि जब एन टाइप की बात कर रहे हैं तो एन टाइप में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ करंट। अब वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, सपोज लेट्स एग्जांपल कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर था पहले, अब पॉइंट ए पे था, अब ये पॉइंट बी पे आ गया। So if my electron shifts from point A to point B, what will be the direction of current? Whether it is from B to A. A to B or B to A? B2A. It will be from B to A, not from A to B. Right? Similarly, if I go to the next structure, जो किसका बना हुआ आपके पास P type semiconductor का। अब हमने क्या किया, P type के अंदर हमने बीच में क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। तो सिलिकॉन स्ट्रक्चर के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम एटम की डोपिंग डाल दी, एज अ डोपेंट एक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इट मींस यहाँ 1 2 3। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आई रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक हमारे पास फ्री अवेलेबल होल है। तो ये होल कहां से लेगा, फ्रॉम नियर बाय इलेक्ट्रॉन से आएगा। जब वहां से आएगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां होल क्रिएट हो जाएगा और ये पॉकेट फुल होगी। इट मींस इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल पर बोथ, हाँ बोलो आपने पी टाइप लिखा सर दोनों का, आपने यू रोट पी टाइप फॉर बोथ ऑफ देम सर, पी टाइप कहाँ लिखा है पी टाइप, देखो ये एन टाइप लिखा है। हाँ सर। हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक है सॉरी Okay. सर। आपने मेरे ये पी टाइप देख लिखो शायद। हाँ सर। तो ये हमारे पास एन टाइप हो गया, ये हमारे पास पी टाइप। तो पी टाइप में क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक होल है। इट मींस जब होल मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होगा। तो इट मींस इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट वी कैन से इज दैट फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, लेट मी राइट हियर, फॉर पी टाइप होल आर इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि हर जगह होल ही मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में नहीं मिलेंगे। और अगर मैं एन टाइप की बात करता हूं जहां पर हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल था, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे इन टाइप में। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। तो जब मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने ट्राइवेलेंट डाली, तो आपने देखा होल्स मेजॉरिटी में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में भी हैं। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। So there are always two types of carrier. One is majority carrier, one is minority carrier. Majority का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा है। Minority means it's like 1 in 10⁶ or 2 in 10⁶, like that. So very small minority, but it's definitely it is there. ठीक है। तो हम जो एन टाइप में बात करते हैं, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। गॉट इट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री है इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज एक्टिंग एज अ डोनर एटम, और यहां पर हमारे पास क्या होल है एक्टिंग एज अ एक्सेप्टर एटम। ठीक है। तो हमारे पास पी टाइप में क्या है, वी आर हैविंग एक्सेप्टर एटम एंड हियर वी आर हैविंग अ डोनर एटम। क्लियर हो गया। डोनर एटम क्या होता है, डोपेंट क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, और एन टाइप पी टाइप में कौन सा मेजॉरिटी होता है कौन सा माइनॉरिटी होता है। इसमें किसी को डाउट तो प्लीज बताओ मुझे, आई कैन रियली एक्सप्लेन। चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। Yes, sir. Yes. कोशिश आप सब यही करना कि कोई भी डाउट होगा साथ साथ पूछते रहना। नो नीड टू राइट एनीथिंग, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर, है ना। तो मेन तो कंसेप्ट समझना है आपने। ओके, नाउ यस, लेट्स टॉक अबाउट अ बिट डिटेल इन द सेमीकंडक्टर की उनके बैंड डायग्राम कैसे होते हैं। अभी आपने पीछे देखा था बैंड डायग्राम, जब देखा था तो हमने कहा सेमीकंडक्टर में क्या है 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का हमने कहा था, है ना। पर उसमें ये नहीं बताया था कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इस स्लाइड में आपको क्या पता लग रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द केस ऑफ एन टाइप एंड फॉर द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में हमने क्या बात करी थी कि इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, और यू कैन से दैट देयर इज अ फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एन टाइप की बात करता हूं तो मुझे अगर करंट फ्लो करवाना है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से मिल जाएगा, है ना, इजीली अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि मेरे को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए, ये मतलब है इसका, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से हमने क्या किया हुआ है, एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर हमने एक यहाँ पर एक लेयर बना रखी है, इसको बोला हमने सेपरेटली ईडी। ये ईडी का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर्स एनर्जी लेवल। यस, डोनर एनर्जी लेवल, कि डोनर के पास भाई इतनी एनर्जी ऑलरेडी है, इट मींस वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ही बैठा हुआ है। आप जैसे इशारा करोगे फटाफट इतनी स्मॉल एनर्जी से जंप करके आपके पास रेडी हो जाएगा फॉर वर्किंग, ठीक है। तो इट मींस फॉर द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमने ये बात करनी कि ईडी जस्ट लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड। नाउ इफ यू सी द बैंड डायग्राम फॉर द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें देखो क्या है, पी में हमने कहा था कि हमारे पास ना होल्स हैं, होल्स आर इन मेजॉरिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमारे पास क्या है, जो हमने यहाँ पर एक लेवल लिया EA, दैट इज द एनर्जी लेवल फॉर द एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाना है, दिस मच एनफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग इनटू कंडक्शन। इज दिस कांसेप्ट क्लियर कि जो हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है फॉर द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, माय डोनर लेवल lies just below the conduction band, and for the case of p type semiconductor my acceptor level lies just above the valence band. Now ये तो हो गया बैंड डायग्राम के बारे में। Now if come to the semiconductor diode, अब आपने पता है कि p पढ़ लिया, n पढ़ लिया, अब इनको ज्वाइन करते हैं आपस में हम। तो जब हम p और n को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, इसके अंदर में क्या बनाया हुआ है, p टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पर n टाइप सेमीकंडक्टर। जो यहाँ पर ये बना रखे हैं, these are holes and these dots represent electrons and this circle represents holes, ठीक है। तो ये आपके पास holes हैं और कुछ बीच में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है जो माइनॉरिटीज में। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर p टाइप में we are having holes majority and electrons minority. Similarly, if I talk about for the n type, here electrons majority, holes minority. तो अब क्या होगा, मैंने आपको कल भी समझाया था जब हम डिस्कस कर सिलेबस की, जब हम आपस में पास नहीं करते तो होता क्या है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कैरियर्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि एक तरफ एक चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ है ही नहीं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया परफ्यूम की बोतल का, कि परफ्यूम बॉटल मान लो आपकी क्लोज है, आपने ओपन किया, स्प्रे किया, तो सब तरफ परफ्यूम की स्मेल डिफ्यूज हो गई पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, राइट, जो आसपास आपके सराउंडिंग। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो कंसेप्ट नहीं है, बट लॉजिक वैसे ही है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप आपस में पी और एन को लेके जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, हमारे पास इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ हमारे पास होल ज्यादा है। नाउ ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। अब कितना फ्लो करंट होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, एक होल यहाँ से है, तो इट विल, अगर हमने सेम टाइप की डोपिंग करी है, means the concentration of doping is same for the p type and n type semiconductor, then the amount of current generated by the electron as well as for the hole will also equal. So in that case we can say that id is coming out to be 0 milliampere and vd is also equal to 0 volt. तो अब देखो ध्यान से कि हमने बीच में ना यहाँ पर एक कुछ ऐसे बनाया हुआ है, this negative this and this plus this। ये क्या चीज है पता है, ये जो बीच में बना हुआ है हमारे पास इस लेयर में देखो, यहाँ डोनर और एक्सेप्टर आयन होते हैं। यस, तो अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं इमोबाइल आयंस। ये कहां पर होते हैं, डिप्लीशन रीजन के फॉर्म में। डिप्लीशन रीजन। यस, तो अब जो डिप्लीशन रीजन का है, ये क्या है बेसिकली, कि जब कैरियर्स फ्रीली जा रहे थे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब फर्दर कैरियर का फ्लो रुक गया। वो क्यों रुक गया, बिकॉज जो हमारे पास स्पेस चार्ज की वजह से जो रीजन बना बीच में, उसने फर्दर ऑब्जेक्ट किया। ये कैसे बना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये फर्दर कैरियर्स के फ्लो को स्टॉप कर रहा है कि यू कैन नॉट गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड आउट। इफ यू वांट टू मूव देन यू हैव टू अप्लाई अ एक्सटर्नल बायस फॉर दैट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने देखा कि अगर हमने कोई बायसिंग नहीं की, बायसिंग का मतलब क्या है, देयर इज नो बैटरी और नो डीसी वोल्टेज। तो कहीं पर वर्ड बायसिंग सुनो तो बायसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमने कुछ वोल्टेज नहीं लगा रखी है उसको, बिना वोल्टेज लगाए हुए
आपके डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है, 0 आ रही है, आईडी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये जो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें हम आप जब यहाँ पर आओगे ना फिजिकली, तब हम आपको क्लास के अंदर भी एक्सेस करवाएंगे। आई विल ब्रिंग वन डायोड इन द क्लास एंड यू कैन चेक इट कि बिना कुछ लगाए हुए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेटिंग अक्रॉस द डायोड एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, हाउ टू कंप्यूट दैट। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे उसमें। तो अभी आप ये देखो कि जब हमने कोई बायसिंग नहीं कर रखी, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट वी आर गेटिंग द आईडी, that is diode current, as 0 and voltage across the diode is 0. And this layer is known as depletion region, or it is also known as space charge region or depletion region. इसके अंदर है क्या, all the immobile ions which further stop the movement of any carrier from one side to other side of the junction. और यहाँ पर देखो हमने एक वर्ड लिखा हुआ है एनोड, एक तरफ लिखा हुआ है कैथोड। तो पी टाइप पे हमने लिखा है एनोड, एन टाइप पे लिखा है हमने कैथोड, ये टू टर्मिनल्स। इतना क्लियर है, नो बायसिंग तक। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। Yes, sir. कोई डाउट किसी का इसके अंदर? सर डिप्लीशन रीजन के बारे में थोड़ा सा हाँ बताओ, किसके बारे में? सर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब क्या है? बेसिकली एज अ वर्ड डिप्लीशन इट मींस हियर इन दिस रीजन आई एम डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स। मेरे पास कोई कैरियर्स ही नहीं है, फ्री कैरियर, क्योंकि जब कैरियर मूव करते हैं तभी करंट जनरेट होता है ना। तो ये एक ऐसा रीजन है जो फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से होल जब मूव कर रहे थे, ये आपस में कंबाइन हो गए। जब कंबाइन हो गए तो क्या हुआ, दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड दे विल सिट इनसाइड द डिप्लीशन, दे कैन नॉट फर्दर मूव अगेन। तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, या जो आपका इमोबाइल आयंस बीच में एम्बेड है, ये क्या कर रहे हैं, ये फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स को स्टॉप कर रहे हैं। इट्स एक्टिंग एज अ ब्रिज, कि यहाँ से इसको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगा, यहाँ से होल नहीं जाने दूंगा, बीच में मैं खड़ा हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन या होल को मान लो मूव करवाना है, तो मुझे जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बैरियर को क्रॉस करके जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो मुझे लगानी पड़ेगी। तो वो हम कब लगाएंगे, विद द बायसिंग वोल्टेज। तो अभी इस स्लाइड के अंदर हमने क्या किया, वी हैव नॉट अप्लाइड एनी बायस, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज कुछ भी नहीं लगाई, सिर्फ कंसोलेशन ग्रेडियंट की वजह से जो हमारे पास कैरियर्स डिफ्यूज हो रहे थे, तो जो स्पेस चार्ज रीजन जो जहां पर डिप्लीशन रीजन बना, जो इसके अंदर कोई भी कैरियर्स फ्री नहीं है हमारे पास, राइट, वो हमारा फॉर्म हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल पीएन डायोड। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई अ बायस टू इट। तो देखो अब आगे देखते हैं, जब हम बायस करते हैं तो पहले हमने केस लिया रिवर्स बायस। अब ये रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि अगर जो आपका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल लगाता हूँ बैटरी का, और एन के अक्रॉस पॉजिटिव लगाता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी रिवर्स बायस करना, इसका मतलब क्या है कि पी साइड पे लगेगा नेगेटिव टर्मिनल, एन पे लगेगा पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जब मैं नेगेटिव वोल्टेज लगाई तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव यहाँ पर आया। अब जब नेगेटिव वोल्टेज इस साइड पे आ गई तो इट मींस इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव्स, है ना। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या होल्स ही है, तो इट मींस होल्स विल गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द दिस साइड। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एन साइड में क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव साइड की जो इस साइड है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पी टाइप के होल्स थे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बायसिंग से तो इनका करंट कुछ आया ही नहीं, क्योंकि इसने तो फर्दर और करंट को स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये फर्दर फ्लो कर लेगा, ये तो अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो हमारे पास पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये बड़े इलेक्ट्रॉन्स ये तो दिखाए हुए, और यहाँ पर होल्स है माइनॉरिटीज में, दे गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द अदर साइड। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे उसको तो नेगेटिव से रिपेल करेंगे, यहाँ पर होल्स पॉजिटिव से रिपेल करेंगे। तो इट मींस whenever I am applying a reverse bias voltage across a PN diode, then there is a very small amount of current which is flowing across the PN diode, and that is only due to the minority carriers. There will not be any current due to the majority carriers. So under reverse bias condition आपने क्या दिमाग में रखना है कि the majority charge carrier current is equal to 0 and minority charge carrier
करंट, we generally call it as IS, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार लीकेज करंट, और रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, पिको एम्पियर्स, नैनो एम्पियर्स, कुछ भी हो सकता है, बहुत स्मॉल होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आइडियल डायोड की बात करता हूं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कुछ करंट नहीं फ्लो करता, इट्स जीरो। अगर पिको एम्पियर में करंट आ 10⁻12 तो ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो हम क्या करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट दिस डायोड एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि आपने यहां से करंट भेजा, उसके बाद कोई पास ही नहीं है स्विच में। इट मींस टू गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड आई रिक्वायर इनफाइनाइट इंपेडेंस। इट मींस यहां से लेके यहां तक जाने में आपको ये इनफाइनाइट इंपेडेंस ऑफर कर रहा है। इनफाइनाइट इंपेडेंस का मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। देयर इज नो ब्रिज फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड, कि कोई अगर मैं पी पे कुछ वोल्टेज भेजूंगा उससे कुछ करंट जनरेट होगा, वो एन पे नहीं पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपका डायोड बनता है रिवर्स बायस। सो अंडर रिवर्स बायस वी जनरली से द डायोड एक्ट्स एज अ ओपन स्विच। और आप एक चीज और देखो उसके अंदर कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक आर लगा रखा है, इसको बोला करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये क्यों लगाई है हमने? बिकॉज वी वांट टू हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ द करंट, की अगर मान लो ऐसा ना हो कि करंट जोन से बहुत हाई आ जाए या बहुत लो आ जाए डिपेंडिंग अपॉन योर रिवर्स वोल्टेज, तो वी वांट अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो आपके सर्किट को डैमेज ना करे, इसलिए हम जनरली करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस को लगाते हैं सो दैट वी कैन हैव अ कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ करंट। So reverse bias condition, is it okay to everybody? If any doubt, please ask. Oh, sir. Okay. Next is your forward bias condition. अब ये forward bias condition के अंदर क्या है, देखो कि when we are applying the positive to the P side and negative to the N side, तो क्या होगा? जब मैंने यहाँ पॉजिटिव P में लगाया तो यहाँ पर जितने भी होल्स थे वो सब क्या होंगे, रिपेल होंगे इससे, और यहाँ पर नेगेटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होंगे। इट मींस व्हाट, कि दिस फॉरवर्ड बायसिंग इज फैसिलिटेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू मूव टू द अदर साइड ऑफ जंक्शन। होल यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। तो अब अगर कैरियर्स इजीली मूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ही नैरो होगी। अच्छा, हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया पिछले स्लाइड में कि हियर व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स बायस वी से दैट द डिप्लीशन रीजन विड्थ वाइडन्स अप। वाइडन्स अप का मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर तो फ्लो ही नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इन द रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, वाइडन होती है। व्हाइल फॉर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस the amount or the width of the division region is very very small, right? अब क्वेश्चन यहाँ पे सर कितनी स्मॉल होगी, तो इट डिपेंड्स अपॉन माय दिस वोल्टेज, कितनी वोल्ट है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। तो इसका हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आप करोगे लैब के अंदर, कि यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड यू नीड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस डायोड। तो आप देखोगे जब हमने फॉरवर्ड बायस लगाया तो मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं उनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटीज की वजह कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी तो कुछ वैसी माइनॉरिटी में है और वो सब कहां आ रहे हैं, टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ जंक्शन। तो ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ दिखाया हुआ होल्स, वो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इट मींस जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं हमारे पास वो तो कुछ रोल प्ले ही नहीं कर रहे हमारे फॉर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। ओनली द मेजॉरिटी कैरियर करंट इज देयर फॉर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। So when we are saying forward bias, it means my circuit acts as a closed switch. Closed switch का मतलब क्या है कि जो भी मैं यहाँ पर लगाऊंगा वो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को। अगर आइडियल डायोड है तो ड्रॉप भी कुछ नहीं होगा। अभी हम अज्यूम करते हैं आइडियल डायोड है, अगर सिलिकॉन डायोड होगा तो 0.7 का ड्रॉप होता है, जर्मेनियम का है तो 0.3 का ड्रॉप मिलता है। So like this, depending upon किस सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपका डायोड बना है, अकॉर्डिंगली उस डायोड का क्रॉस ड्रॉप। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि under no bias there is no current, ID is 0, VD is 0. Under reverse bias there is small amount of current which is due to the flow of only minority carriers, that is of the order of microamperes, nanoamperes or picoamperes. And if we talk about the forward bias of the condition of the diode, in that case the current is mainly due to the flow of majority carriers, and that is of the order of milliamperes. And in forward bias the division region width is
decreased, and in the case of reverse bias the diffusion region width is increased. इतना आपका पार्ट है, ये क्लियर है? किसी को डाउट तो बताओ, किसी को कोई चीज समझ नहीं आया या लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो मुझे प्लीज बताओ. Sir, can you please explain the concept of closed switch again? सी क्लोज स्विच का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस लगाया तो पॉजिटिव यहाँ पर वोल्टेज लगा, यहाँ नेगेटिव लगाई, तो पॉजिटिव ने करना है जो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर क्या होल्स है और यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन, इट मींस मेजॉरिटी कैरियर्स को वो पुश कर रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, है ना. तो पॉजिटिव जब रिपेल करे तो इट मींस जो मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इजीली वहां पर जा पा रहे हैं, कहां पर, टुवर्ड्स द एन साइड, और इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा पा रहे हैं. तो जब फ्रीली जा पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज वेरी नैरो विड्थ और नैरो डिफ्यूजन रीजन है कि कम वोल्टेज लगानी पड़ेगी हमें क्रॉस करने के लिए. तो अगर कैरियर्स इजीली जा पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर सेइंग इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच. तो मींस अगर आप यहां पर वोल्टेज लगाओगे 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लगाओगे वोल्टेज, तो आप जो वोल्टेज लगाओगे अकॉर्डिंगली करंट यहां से यहां पर फ्लो कर पा रहे हैं. पहले वाले केस में क्या था कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, ये बहुत स्मॉल माइनॉरिटीज में की वजह से फ्लो कर रहा था, हम कह रहे थे ओपन स्विच है. तो क्लोज स्विच का मतलब क्या है, इट इज ऑफरिंग मिनिमल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ जंक्शन. गॉट इट? सर पी टाइप रीजन में जो सर इसका जो पी टाइप रीजन है सर, पी टाइप रीजन में क्या होल्स कम है जितने इलेक्ट्रॉन से डिप्लीशन जोन में? देखो ये पी टाइप में हमने क्या बनाया, ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ ये क्या है, सारे दीज आर ऑल माइनॉरिटी कैरियर्स. ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं आपको सारे के सारे ये क्या है, होल्स. जो मेजॉरिटी में देखो ये वाले सारे होल्स हैं, ये मेजॉरिटी में है हमारे पास. तो जब हमने पॉजिटिव लगाया तो सारे के सारे होल्स ही यहाँ से यहाँ पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं. सिमिलरली इन द एन साइड ये सारे के सारे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये यहाँ से ड्रिफ्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो मेनली करंट है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, वेदर इट इज पी टाइप और एन टाइप. सर करंट मिली एम्पियर्स में क्यों है, एम्पियर्स में क्यों नहीं है? एम्पियर्स तो बहुत हाई करंट होता है. आप एक घरों में जो सप्लाई आती है कितनी आती है पता है आपको? हाँ? चेक करना आप घर में कितना करंट आता है. 220 एम्पियर्स. सर एट मैक्स अप्लायंसेस 15 एम्पियर्स के होते हैं ना? हाँ, तो आप जो एम्पियर्स की बात करो, एक डायोड से अगर एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो तो खत्म हो जाएगा, इट कैन नॉट हैंडल दैट एम्पियर. जो आपके पास मैक्सिमम करंट होता है वो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है. तो मिली एम्पियर इज आल्सो वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट. छोटा नहीं है ये, मतलब कि मिली 10⁻³ अगर नहीं, दैट इज आल्सो वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट. अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कि करंट को एम्पलीफाई कैसे करना है आपने. कि मान लो करंट आपको जैसे 5 मिली एम्पियर आ रहा है, आपने इसको 50 मिली एम्पियर बनाना है तो कैसे करोगे आप? सो फॉर दैट वी विल स्टडी आल्सो दैट. अभी आएगा वो आपका. अभी आप ये लेके चलो कि डायोड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन इट इज मिली एम्पियर, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इट इज माइक्रो. क्लियर है पॉइंट? चलें आगे. सर ये जो होल्स होते हैं ये एक्चुअली में होते हैं या फिर एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो होल्स उसको उस जगह को जब होल्स हमने जब डोपिंग करनी है, हमने होल्स का मतलब क्या एक्चुअल में कि आपको मैंने दिखाया था ना पीछे डायग्राम के अंदर, जहां पर एक ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा वहां पर एक एम्प्टी स्पेस है ना. तो अगर जब मैं डोपिंग करता हूं ट्राइवेलेंट की तो हमने कहा होल्स फॉर्म हो रहे हैं. अब अगर मैं डोपिंग हायर करूंगा तो हायर होल्स अमाउंट ऑफ होल्स फॉर्म होंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स दैट आई एम एडिंग, राइट. सो जितने आप ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली वैसे बनेगा. और अगर आप कह रहे हो कि ये होते नहीं होते, अगर ये होल नहीं होंगे तो करंट फ्लो कैसे करेगा? सर होम सप्लाई में 10 एम्पियर के अंडर हो. यस, 220 वोल्ट अंडर 10 एम्पियर, जनरली 5 एम्पियर्स के आसपास ही आ जाता है. तो वो तो एम्पियर्स तो बहुत हाई करंट होता है, मिली एम्पियर्स में भी काफी झटके आते हैं अगर टच करो तो. ठीक है, हाँ बोलो.
सर ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, अगर हम एक कांस्टेंट वोल्टेज पे जंक्शन को लगा के छोड़ दें तो टाइम बीतते बीतते कम होगा विड्थ? नहीं, तो अगर सिर्फ अगर मान लो voltage आपने टू, बढ़ाएं अभी कह रहे हो तभी कि अगर होगा। मैंने यहाँ पर 3 वोल्ट लगा दिया, सपोज करो, ये कह रहे हो ना, तो मान लो मैंने 3 वोल्ट लगाया और 3 वोल्ट लगा के छोड़ दिया इसको, तो ये जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी ये एक फिक्स वैल्यू की फॉर्म होगी, ये नहीं कि छोटी होती रहेगी। नहीं, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी कम होगी बिल्कुल, डिप्लीशन। ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, ठीक है आपको मल्टीसिम में भी करवाएंगे, आप घर में बैठ के भी करोगे, जब ऑनलाइन में बताएंगे आपको यहाँ पर कि कैसे कनेक्शन करने हैं, फिर आपने वोल्टेज बढ़ाना है, फिर चेक करो करंट कितना आ रहा है, तो आपको एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जब मान लो कि 5 वोल्ट के बाद 10 वोल्ट किया, 20 वोल्ट किया, 40 वोल्ट किया, फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये लीनियरली डिक्रीज नहीं करती, नॉट एक्सपेक्ट की लीनियर डिक्रीज करेगा, शुरू में डिक्रीज करेगा, धीरे एक पॉइंट के बाद आने के बाद ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट हो जाएगी कि जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ाओ। क्लियर? सर एक चीज पूछनी है। आप पूछो। सर इसमें जो फॉरवर्ड बायस है इसमें वोल्टेज बढ़ रही है, हम्म, तो सर ये कितनी बढ़ती है और रिवर्स बायस में कितनी ज्यादा मिनिमम हो सकती है वैल्यू वो वोल्टेज बताओ ना, की? देखो जब हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आपको अभी लैब में जब करोगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करोगे, वी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर आईडी लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे वीडी, तो ये मेरी फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये मेरी रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर मैं सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज करता हूँ ना, तो सिलिकॉन केस में क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई द फॉरवर्ड वोल्टेज, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 0.7 के आसपास आके ना वो करंट स्टार्ट कर देता है जनरेट करना, फिर आप चेक करोगे 0.7 का 0.8 पे कुछ और करंट बढ़ा, 0.9 पे, 1 पे, 1, 2 पे, 3, 4, 5, 7, तो ऐसे करंट इंक्रीज करता है, तो आपको वो पता लगेगा कि यहाँ पर जो आईडी आ रहा है वो मिली एम्पियर्स में आप नोट करते रहोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स में अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इसको आईएस देते हैं, इन माइक्रो एम्पियर्स की रेंज में होता है, तो अगर माइक्रो एम्पियर्स में बनाऊंगा स्केल में तो ये इस तरह से जा रहा होता है, तो इसमें अगेन -1, -2, -3, तो आप जब स्टार्ट करोगे ना तो -1 करोगे मान लो वोल्ट, तो वो पिको एम्पियर में आएगा, फिर धीरे धीरे नैनो एम्पियर में आएगा, फिर माइक्रो एम्पियर में आएगा, ऐसे चलता है। क्लियर हो ओके गया सर, कंसेप्ट? हाँ जी हाँ जी। चलो अब आगे, हाँ बोलो, डाउट है कोई और? सर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कैसे पता चलता है? फॉरवर्ड बायस या मतलब रिवर्स बायस है, अगर देखो डिप्लीशन क्या एक्ट कर रही है, इट्स एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स, है ना, तो अगर कैरियर्स इजीली मूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हुई, यस और नो? यस यस सर। और अगर कैरियर्स नहीं फ्लो कर पा रहे तो क्या होगा, विड्थ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो जब हम कह रहे हैं रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, इन दैट केस आवर डिप्लीशन विड्थ इज वाइडेंड बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैरियर, only minorities carrier are formed, so because it is offering almost infinite resistance, but under forward bias condition we generally say that it is offering almost zero resistance because carriers are freely moving, so there the diffusion width is almost zero or negligible, we can say. Clear है? चले आगे। अब देखो आपके स्क्रीन पे सामने एक इक्वेशन लिखी है, शॉकलेस इक्वेशन। अभी जो हमने पहले पढ़ा है उसमें क्या किया था, हमने रिवर्स वोल्टेज लगाया, फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई या कोई वोल्टेज नहीं लगाई, तो हमने आईडी और बीडी का प्लॉट बना के देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। लेकिन ये जो सी आपके पास क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे आप निकाल सकते हो कि डायोड में करंट कितना फ्लो करेगा अगर मैं इतनी वोल्टेज दूंगा। जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि सर अगर 5 वोल्ट दूंगा तो करंट कितना आएगा, 4 वोल्ट दूंगा तो कितना आएगा, तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जिसके अंदर क्या है, चेक करते हैं। ID stands for the diode current which is of the order of milliamperes. IS is my leakage current or reverse saturation current which is of the order of picoampere or microampere. VD is the amount of voltage across the diode that is given in volts. Small n is ideality factor. If it is not given in your exam or in numerical, then you can take n as 1 by default. And VT is known as the thermal equivalent voltage or thermal voltage. अब VT कैसे निकालते हैं, by this expression KT divided with Q, where K is your Boltzmann constant and its value is 1.38 in 10⁻23 joules per Kelvin. And here in this expression you need to convert this T into Kelvins first. तो अगर आपको temperature given है centigrades में, तो you need to convert it into Kelvins by adding 273 to it. And Q you all know charge. तो अगर मैं क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि आपको मान लो एक रूम टेम्परेचर पे निकालना है, करंट निकालो कितना आता है,
So under room temperature, if you compute, VT is coming out to be 26 millivolts. So you need not to compute it again. अगर आपको मान लो उसने कहा नहीं at temperature T is equal to 50 डिग्री सेंटीग्रेड या कोई और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपने उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, VT निकालना है, फिर आपने इस एक्सप्रेशन में उसको पुट करना है एंड सॉल्व करना है. So based on this equation, let me give you one numerical. Just note down one numerical. Sir, wait. Let me write this thing. लिखो Yeah. आराम से लिखो. So I will give you as a homework 2 small questions based upon this Shockley's equation. उससे आपकी Sir? अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. हाँ बोलो. सर ये इसका भी आप दोगे ना पीडीएफ, इसमें ये होगा? सब कुछ मिलेगा बच्चा, मैं बोलो था आपको. ठीक है. मेरे पास अभी CH2 ग्रुप का नहीं आया, मेरे ख्याल से बाकी सबका आ गया. CH1 का नहीं आया, सॉरी. तो बाकी सबको मेल कर दूंगा, ठीक है. अभी आपको बता भी दूंगा कहां पर. तो अब एक क्वेश्चन नोट कर लिखो पहले. The current flowing through a PN diode at room temperature. Question number 1 क्या है? The current flowing through the room through a PN junction diode at room temperature when reverse biased is 0.15 microampere. So what's the value? 0.15 microampere. This is the amount of current which is flowing at room temperature under reverse bias condition. Right? You have to determine the current flowing through the diode when the voltage applied is 0.12 volts. You have to determine the amount of current flowing through the diode when the forward voltage which you are applying voltage is 0.12 volts. This is first question. Question number 2 is a silicon diode. सर वोल्टेज की वैल्यू क्या बताई आपने? 0.12. सामने लिखा हुआ स्क्रीन में देखो मैंने 0.12. Second question is a silicon diode has a reverse saturation current of 2.5 microampere at 300 degree kelvins. Find forward voltage for a forward current. Find forward voltage for a forward current of 10 milliampere. 10 milliampere. So these two questions are based upon this Shockley equation. तो मैं आपको न्यूमेरिकल पहले करा रहा हूँ, डिटेल में आपको इसकी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है. ठीक है. So let's wind up now. आपकी क्लास का टाइम हो गया दूसरी क्लास का. सर पहले क्वेश्चन में आपने उसकी वैल्यू की दी है रिवर्स बायस्ड. पहले क्वेश्चन में क्या किया है? रिवर्स बायस्ड की वैल्यू 0.15 आगे क्या है? माइक्रोएम्पियर. ठीक है. अच्छा आपका इसका आगे. तो मैं अभी लेक्चर के बाद आपको एक लिंक शेयर करूंगा. उस लिंक के अंदर आपके पास डिटेल्स स्लाइड्स भी हैं. ठीक है. और आपके पास इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी. जैसे कन्वर्ट होता है मैं कन्वर्ट डाल दूंगा. कल का भी डालूंगा उसके अंदर. ठीक है. Now you can leave for the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Okay.